Hello friends, welcome back to my cricket channel. Today we are going to read about the Indian Premier League. The Indian Premier League IPL is a professional T20 cricket league contested by 8 teams based out of 8 different Indian cities. जो इंडियन प्रीमियर लीग है ये एक प्रोफेशनल T20 लीग है और इसे 8 टीम्स कॉन्टेस्ट करती हैं जो अलग अलग इंडियन सिटीज से हैं. The league was founded by the Board of Control for Cricket in India in 2007. इस लीग को BCCI ने जो Board of Control for Cricket in India ने फाउंड किया था 2007 में. It is usually held between March and May of every year and has an exclusive window in the ICC Future Tours program. Usually इसे मार्च और मई के बीच में हेल्ड किया जाता है हर साल और इसकी एक एक्सक्लूसिव विंडो अब रखी गई है ICC फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में. इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं. The IPL is the most attentive cricket league in the world and in 2014 was ranked 6th by the average attendance among all sports leagues. जो IPL है ये सबसे ज्यादा अटेंड की जाने वाली क्रिकेट लीग है वर्ल्ड में और 2014 में इसे 6th रैंक मिली थी एवरेज अटेंडेंस के तौर पर सभी स्पोर्ट्स लीग्स में. In 2010, the IPL became the first sporting event in the world to be broadcast live on YouTube. 2010 में IPL पहला स्पोर्टिंग इवेंट बना था जिसे कि YouTube पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया. The brand value of IPL in 2019 was 47,500 करोड़ रुपीस. IPL की ब्रांड वैल्यू 2019 में 47,500 करोड़ रुपीस थी जो कि 6.7 बिलियन US डॉलर्स है. According to Duff and Phelps एजेंसी की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखी गई है. According to BCCI, the 2015 IPL season contributed rupees 1,150 crore to the GDP of the Indian economy. BCCI के अकॉर्डिंग जो 2015 का IPL हुआ था उसने इंडिया की GDP में 1,150 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया. IPL 2020 set a massive viewership record with 31.57 million average impressions and with an overall consumption increase of 23% from 2019 season. जो IPL 2020 हुआ उसने व्यूअरशिप का एक रिकॉर्ड बनाया. इसमें 31.57 मिलियन एवरेज इंप्रेशंस आए. मींस लोगों ने हिट किया और इसे देखने की कोशिश की. ओवरऑल कंजम्पशन 23% रहा 2019 सीजन में से 23% कंजम्पशन बढ़ गया. There have been 13 seasons of the IPL tournament. अभी तक IPL टूर्नामेंट के 13 सीजन्स हो चुके हैं. The current IPL title holders are the Mumbai Indians who won the 2020 season. करंट IPL के टाइटल होल्डर्स मुंबई इंडियंस है जिन्होंने 2020 सीजन जीता था. The venue for the 2020 season was moved due to the COVID-19 pandemic and games were played in the United Arab Emirates. जो 2020 सीजन का वेन्यू था उसे चेंज किया गया कोविड-19 पैंडेमिक के कारण और गेम्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुए. अब हम BCCI की हिस्ट्री को देखते हैं. The Indian Cricket League was founded in 2007 with funding provided by Zee Entertainment Enterprises. एक दूसरी लीग इंडियन क्रिकेट लीग 2007 में फाउंड की गई थी जिसकी फंडिंग Zee Entertainment Enterprises ने की थी. The ICL was not recognized by the Board of Control for Cricket in India or the International Cricket Council ICC and the BCCI were not pleased with its committee members joining the ICL Executive Board. जो ICL था उसे BCCI ने रिकॉग्निशन नहीं दी, मीन्स उसे मान्यता नहीं दी और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI इस बात से खुश भी नहीं थे, प्लीज भी नहीं थे कि कमेटी के मेंबर्स ICL के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ज्वाइन कर रहे थे. To prevent players from joining the ICL, the BCCI increased the prize money in their own domestic tournaments and also imposed lifetime bans on players joining the ICL, which was considered a rival league by the board. तो अपने प्लेयर्स को ICL से ज्वाइन करने से रोकने के लिए BCCI ने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स थे उनमें प्राइज मनी भी बढ़ाया और साथ ही साथ जो प्लेयर्स ICL में
ज्वाइन कर रहे थे, आईसीएल को ज्वाइन कर रहे थे, उन पर लाइफ बैन भी लगाए गए क्योंकि इसे एक रिवेल लीग बोर्ड ने माना था जिसे मान्यता नहीं दी गई थी। On 13th September 2007, on the back of India's victory at the 2007 T20 World Cup, announced a franchise-based 2020 cricket competition called Indian Premier League. 13 सितंबर 2007 को इंडिया की 2007 T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद बीसीसीआई एक फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 कंपटीशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कहा गया। जो पहला सीजन था इसका अप्रैल 2008 में स्लेटेड होना था और इसकी एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी हुई न्यू दिल्ली में। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी, who spearheaded the IPL effort, spelled out the details of the tournament including its format, the prize money, franchise revenue system and squad composition rules. बीसीसीआई के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने आईपीएल के एफर्ट को स्पीयरहेड किया, मींस लीड किया, और उन्होंने सारी डिटेल्स टूर्नामेंट के बताया, उसका फॉर्मेट, उसकी कितनी प्राइज मनी रखी गई थी, फ्रेंचाइज रेवेन्यू सिस्टम क्या था, फ्रेंचाइजी को कितना रेवेन्यू मिलना था, और स्क्वाड कंपोजिशन रूल्स कैसे थे, मींस स्क्वाड में कितने कितने प्लेयर्स रखे जाने थे, कितने फॉरेन प्लेयर्स होंगे और कितने डोमेस्टिक इंडिया के प्लेयर होंगे, ये सारी डिटेल्स ललित मोदी ने बताई। It was also revealed that the IPL would be run by a 7-man governing council composed of former Indian players and BCCI officials, and that the top 2 teams of the IPL would qualify for that year's Champions League T20. ये also reveal किया गया कि जो IPL है इसे 7-man गवर्निंग काउंसिल के द्वारा चलाया जाएगा। एक 7-man की गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स होंगे और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स होंगे, और जो टॉप 2 टीम्स रहेंगी आईपीएल की, ये उसी साल होने वाली चैंपियंस लीग T20 के लिए क्वालिफाई करेंगे। मोदी also clarified that they had been working on the idea for 2 years and that the IPL was not started as a knee-jerk reaction to the ICL. मोदी ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जो आईपीएल का आइडिया था वो 2 साल से उनके दिमाग में था, और ऐसा नहीं है कि आईसीएल एकदम से शुरू हुआ तो उसका नी जर्क रिएक्शन हुआ और आईपीएल को शुरू किया गया। हम पहले से ही आईपीएल की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा ललित मोदी ने कहा। द लीग्स फॉर्मेट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीमियर लीग ऑफ इंग्लैंड एंड द एनबीए इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो लीग का फॉर्मेट था ये प्रीमियर लीग जो कि इंग्लैंड में होती है और एनबीए होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसी से सिमिलर था, मिलता जुलता था। In order to decide the owners for the new league, an auction was held on 24 January 2008 with the total base prices of the franchisees costing around $400 million, और ओनर्स को डिसाइड करने के लिए कि वो ऑक्शन में कौन से प्लेयर्स लेना चाहते हैं, 24 जनवरी 2008 को ऑक्शन हुई जिसमें बेस प्राइस रखी गई और टोटल $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज कर सकते थे। एट द एंड ऑफ द ऑक्शन द विनिंग विनर्स वर अनाउंस। ऑक्शन के बाद विनिंग विनर्स अनाउंस किए गए और सिटीज भी अनाउंस की गई। ये सिटीज थी बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली एंड मुंबई। In the end, the franchisees were all sold for a total of $723.59 million. लास्ट में सारी फ्रेंचाइजी $723.59 million में बिक गई। द इंडियन क्रिकेट लीग सून फोल्डेड इन 2008, और जो इंडियन क्रिकेट लीग बनी थी ये 2008 में सिमट गई। मींस अब इंडियन प्रीमियर लीग के आ जाने के बाद ये पॉपुलर नहीं हो पाई। एक्सपेंशंस एंड टर्मिनेशंस, मींस इसमें क्या एक्सपेंशंस हुए, कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई और कौन सी चीजें हटी। Crowd. On 21 March 2010, 2 new franchisees, Pune Warriors India and Kochi Tuskers Kerala, joined the league before the 4th season in 2011. 21 March 2010 को 2 नई फ्रेंचाइजीज पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोची टस्कर्स केरला ये भी ज्वाइन हुई 4th सीजन से पहले 2011 में। सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रुप bought the Pune franchisee for $370 million, while
Randy Zavas Sports World bought the Kochi franchise for $333.3 million. तो सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रुप ने पुणे फ्रेंचाइजी को खरीदा $370 मिलियन में और रैंडी जवर्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोची फ्रेंचाइजी को खरीद लिया $333.3 मिलियन में. However, 1 year later, on 11 November 2011, it was announced that the Kochi Tuskers Kerala side would be terminated following the side breaching the BCCI's terms of conditions. लेकिन एक साल बाद 11 नवंबर 2011 को ये अनाउंस किया गया कि कोची टस्कर्स केरला साइड को टर्मिनेट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई के टर्म्स और कंडीशंस को ब्रीच किया, रूल्स तोड़े, जिस वजह से उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है, इस टीम को हटाया जा रहा है. Then on 14 September 2012, following the team not being able to find new owners, the BCCI announced that the 2009 champions, the Deccan Chargers, would be terminated. 14 सितंबर 2012 को जब टीम को नए ओनर्स नहीं मिले तो बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि जो 2009 के चैंपियंस हैं, डेक्कन चार्जर्स हैं, उसे टर्मिनेट किया जाएगा, मींस उन्हें भी हटा दिया जाएगा. The next month, on 25 October, an auction was held to see who would be the owner of the replacement franchise, with Sun TV network winning the bid for the Hyderabad franchise. Next month को 25 अक्टूबर को एक ऑक्शन हुई और इसमें एक रिप्लेसमेंट चुना जाना था डेक्कन चार्जर्स का, और सन टीवी नेटवर्क ने बिड को जीता और हैदराबाद फ्रेंचाइज उन्हें मिल गई. द टीम वुड बी नेम्ड सनराइजर्स हैदराबाद, और उसके बाद से इस टीम को सनराइजर्स हैदराबाद कहा जाने लगा. पुणे वॉरियर्स इंडिया विड्रू फ्रॉम द आईपीएल ऑन 21 मई 2013 ओवर फाइनेंशियल डिफरेंसेस विद द बीसीसीआई. पुणे वॉरियर्स इंडिया, जो कि नई टीम आईपीएल में आई थी, इसने आईपीएल से विड्रॉ कर लिया 21 मई 2013 को, क्योंकि उसके बीसीसीआई के साथ फाइनेंशियल डिफरेंसेस थे, मींस फाइनेंशियल मामलों में उनके डिफरेंसेस हो रहे थे, कुछ विवाद थे, जिस वजह से पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी आईपीएल से विड्रॉ कर लिया. द फ्रेंचाइज वाज ऑफिशियली टर्मिनेटेड बाय द बीसीसीआई ऑन 26 अक्टूबर 2013 on account of the franchise failing to provide the necessary bank guarantee. और बीसीसीआई ने 26 अक्टूबर 2013 को इस फ्रेंचाइजी को ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया. ये कहा गया कि ये बैंक गारंटी नहीं दे पाई. On 14 June 2015, it was announced that two-time champions Chennai Super Kings and the inaugural season champions Rajasthan Royals would be suspended for 2 seasons following their role in a match fixing and betting scandal. 14 जून 2015 को ये अनाउंस किया गया कि टू टाइम चैंपियंस जो चेन्नई सुपर किंग्स हैं और इनॉग्रल सीजन चैंपियंस, पहले सीजन की चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स है, इन्हें 2 सीजन्स के लिए सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि इनका रोल था मैच फिक्सिंग में और बैटिंग स्कैंडल में. मींस जो मैच फिक्सिंग का विवाद हुआ था और बैटिंग स्कैंडल हुआ था, इसमें ये दोनों टीम्स इन्वॉल्व थी, इनके जो फ्रेंचाइजी ओनर्स थे वो इन्वॉल्व थे. देन ऑन 8 दिसंबर 2015, following an auction, it was revealed that Pune and Rajkot would replace Chennai and Rajasthan for 2 seasons. और फिर 8 दिसंबर 2015 को ये डिसाइड हुआ ऑक्शन के बाद कि पुणे और राजकोट चेन्नई और राजस्थान को 2 सीजन्स के लिए रिप्लेस करेंगी. द टू टीम्स वर द राइजिंग पुणे सुपर जायंट एंड द गुजरात लॉयंस. और जो 2 टीम्स आई उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट और गुजरात लॉयंस कहा गया. In August 2021, the BCCI announced that 2 new franchisees would join the league starting from 2022 season. अगस्त 2021 में बीसीसीआई ने यह भी अनाउंस किया कि अब 2 नई फ्रेंचाइजी 2022 सीजन से ज्वाइन करेंगी. इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट द फ्रेंचाइजीज वुड बी बेस्ड इन 2 ऑफ द 6 सिटीज शॉर्टलिस्टेड बाय द बीसीसीआई. और यह भी अनाउंस किया गया कि जो फ्रेंचाइजी हैं वो इन सिटीज में बेस्ड होंगी. ये जो 6 सिटीज शॉर्टलिस्टेड की गई हैं, इनमें से फ्रेंचाइजी आएंगी: अहमदाबाद,
Lucknow, Cuttack, Guwahati, Ranchi and Dharamshala. So friends, I hope you have liked this information related to the IPL, history of IPL. If you have liked it, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and also don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of the latest videos uploaded by me. I will come up with the latest cricket news very soon and records also. Till then, it's bye bye.